Hello students, myself Mrs. Rama Babri. I welcome you to class 8. History, lesson number 2, the expansion of the British power. Under this topic, we are going to study the subtopic that's a doctrine of lapse. Doctrine of lapse. This was introduced by Lord Dalhousie. Now, the points which we are going to focus are that who was Lord Dalhousie? The meaning of doctrine of lapse will be doing. Then three type of Indian states. Three types of the Indian states. Then the kingdoms were annexed. Fine. Who was Lord Dalhousie? Then the meaning of the doctrine of lapse, okay. And the Lord Dalhousie, when he came to India, he observed three types of Indian states. What kinds it was? What were the three types of the Indian states observed by Lord Dalhousie? After that, we'll be studying the many kingdoms, small and the bigger, they were being annexed by East India Company. But what was the policy now? What was the policy? Fine, these are the focus points. Keep it in mind and listen to the lecture very, very nicely. Okay? Open your mind, find very interesting topic it is. You'll be enjoying it. The kind of changes brought by Lord Dalhousie. He introduced the doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Okay? Now, what's the meaning of the doctrine of lapse? According to doctrine of lapse, there you can see it very clearly on the screen. I'm reading out the first point for you people. Okay? According to doctrine of lapse, when the ruler of a kingdom under the British protection, that is a subsidiary state, died without a natural heir, his territory would not automatically pass to an adopted heir, but would lapse. That is, became the part of the British dominant unless the adoption had been earlier approved by the British. Fine. Now let me explain you this one. अब आप देखेंगे कि बिफोर वी गो इन डीपर मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पहले हमने पढ़ा, पहले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिटिश रूल अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही थी. ब्रिटिशर्स दे केम इन इंडिया जस्ट टू ट्रेड, but later on they started expanding their territories. Fine. और तरीका क्या था उनका, पॉलिसीज़ क्या थी? Previously we have studied that military कन्फ्रंट्रेशन, मिलिट्री अटैक, अपनी फौज को लेकर वो अटैक करते थे और किस तरह से उन्होंने अपना पैर बंगाल में जमाया, देन मैसूर, देन मराठा एंड ऑल. ओके. फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत भी जो है उन्होंने कई बड़े बड़े किंगडम को अपने कब्जे में कर लिया. ठीक है. Subsidiary alliance, you can understand. I've already told you very nicely that what exactly it is, that they asked the rulers to accept they means East India Company. They used to ask the ruler to accept the supremacy of the British and sign the subsidiary treaty with them. और रिटर्न में ब्रिटिशर्स क्या देते थे? प्रोटेक्शन दिया करते थे उनको. ठीक है. मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया करते थे. तो ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो थी, एक तरीका था अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए.
फिर आया पैरामोंटेसी। ठीक है, पैरामोंटेसी मतलब कि उन्होंने अपने आप ही हक ले लिया कि हम सुपीरियर हैं आपसे, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है देन द अदर इंडियन रूलर्स। हमारा हक है कि हम आपको एनेक्स कर सकते हैं। कई जगह मतलब कि वो बोल देते थे कि भाई आपको तरीका नहीं आता है हाउ टू रूल ऑन द हाउ टू टेक केयर ऑफ द किंगडम, हाउ टू रूल ऑन द पीपल, हाउ टू डू द ट्रेनिंग एंड ऑल। तो अपनी मर्जी के मालिक बने हुए थे। और फिर इसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। Who was he exactly? Who was he? He was a governor general from 1848 to 1856. What he observed when he came to India, what he observed? He observed that India states are divided into three types. He observed that in India the states are divided in three types. What were the types? Right? Number one, free or independent. ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे थे जो फ्री और इंडिपेंडेंट थे, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट थे, एंड दे हैड नो कनेक्टिविटी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई लेना देना नहीं था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरे टाइप के स्टेट उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि प्रोटेक्टरेट स्टेट। फाइन, such states were under the protection of East India Company, means they have signed the subsidiary alliance. प्रोटेक्टरेट स्टेट्स कौन से थे? जिनको प्रोटेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी हुई थी, और जिनको प्रोटेक्शन दी थी इसका मतलब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है। और उसका आगे क्या मतलब हुआ कि उनके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, सिर्फ वो मिलिट्री मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं, और डायरेक्टली जो है उनके रेजिडेंट या ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है ऐसे प्रोटेक्टेड स्टेट के ऊपर अपनी पूरी इंटरफेरेंस रखा करते थे। ठीक है, फिर आता है थर्ड टाइप का स्टेट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया लॉर्ड डलहौजी ने, कि डिपेंडेंट स्टेट्स भी हैं। अब ये डिपेंडेंट स्टेट हिंदुस्तान में कौन से थे? टोटली डिपेंडेंट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। Why? Because they have lost their territories in the war with East India Company. कभी न कभी उनसे वॉर हुई और उस वॉर में अपने टेरिटरीज को हार गए। So the rulers or the Nawab were merely a puppet in the hand of East India Company. तो ये तीन तरह के जो स्टेट्स उनको नज़र आए, उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप है फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, उनको तो आप एकदम अलग कर दो। उनका ब्रिटिशों से कोई लेना देना नहीं था, वो ना वो कोई संबंध रखते थे, ठीक है, ना वो इतनी उनको पावर दे रहे थे कि उनसे किसी भी तरह का ट्रेडिंग रिलेशनशिप या वैसे ही फ्रेंडशिप हो जाए। बिल्कुल नहीं, एकदम उनको दरकिनार करा हुआ था। बट द सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स जो थे, प्रोटेक्टेड स्टेट्स एंड द डिपेंडेंट स्टेट्स, they were under the doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Fine. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसके अंतर्गत ये आ सकते थे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बना हुआ था, तो वो किसी भी तरह की पॉलिसी इनके ऊपर इंट्रोड्यूस कर सकते थे। वेरी सिंपल। फाइन, they can very easily introduce any kind of policies। तो इसमें एक जो स्टेट था, जो इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई राजा, कोई नवाब जिसके बहुत बड़ी टेरिटरी है और वो प्रोटेक्टेड स्टेट या डिपेंडेंट स्टेट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, उसके अंडर में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, और उसका कोई बायोलॉजिकल या नेचुरल हायर का मतलब क्या हुआ? HVIR। इसका मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है ना। परिवार में भी आप लोग सुनते होंगे कि मतलब कि फादर के बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी, जो उसकी संपत्ति का अधिकार उसके बेटे को है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अगर उसका अपना बच्चा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, फीमेल चाइल्ड नहीं, मेल चाइल्ड नहीं है, तो क्या होगा? वो अडॉप्ट कर लेते थे बच्चे।
चाहे रिश्तेदारी में, चाहे फ्रेंडशिप में, चाहे अनाथ आश्रम से, कहीं से भी वो अडॉप्ट कर लेते थे बच्चे और फिर उनको उत्तराधिकारी बना देते थे, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने खारिज कर दिया कि वो इस तरह से किसी को अपना हायर उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। फाइन। तो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश कंपनी एनेक्स्ड मेनी किंगडम। एक ये डर्टी पॉलिसी थी, ठीक है, कि अगर किसी राजा की अपनी कोई संतान नहीं है तो वो गोद लिए हुए संतान को अपनी पर्सनल संपत्ति दे सकता है, लेकिन पूरी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी। मतलब वो किसी किंगडम के रूलर या नवाब वो नहीं हो सकते हैं। ये इनकी पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फाइन। तो फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी। अब ये इनका एक और हथकंडा था, एक और पॉलिसी थी कि जिससे कि लॉर्ड डलहौजी जो है, ही वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1848 से लेके 56 तक थे, और ही डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। If a ruler died without a male heir, his kingdom will be lapsed. Means it will automatically come under the रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा टेरिटरी चला जाएगा, उसकी पर्सनल अपने पैसे हैं, गहने हैं, कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो तो उसके अडॉप्टेड चाइल्ड के पास चली जाएगी, लेकिन पूरा किंगडम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उससे छीन लेगी। फाइन। तो ऐसे में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स द किंगडम। कौन कौन से किंगडम? अब 48 में आए थे तो 48 से हम शुरुआत कर रहे हैं। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 एंड फाइनली अवध 1856। देखो कितनी तेजी से वो कितने बड़े बड़े किंगडम को अपने अंडर में ले रहे थे, एनेक्स कर रहे थे, कब्जा जमा रहे थे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? लेकिन देखो सारे वाले में आप देखेंगे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी में यहाँ पे इनके अपने नेचुरल बायोलॉजिकल हायर नहीं थे, ठीक है, अपने सगे बेटे नहीं थे, गोद लिए हुए बेटे हुए थे, ठीक है, तो उनको नहीं दिया, नहीं करा। लेकिन अवध की कहानी एकदम अलग थी। अवध की कहानी में कहानी नहीं थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो वो कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अपने आप ही इन्होंने कानून को तोड़ मरोड़ लिया, ठीक है। According to East India Company, Awadh was annexed by them in order to free the people of Awadh from the governance of ruler of Awadh. उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो है, अवध के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ का रूलर, यहाँ का नवाब बहुत अच्छे से रूल नहीं कर रहा है। तो हम इतने गंदे गवर्नर्स, इतना एक गंदा इनका गवर्नमेंट है, इतना गंदा तरीका रूल है, तो उससे जो है आम जनता परेशान है, इसलिए हम अवध अपने अंडर कर रहे हैं। बताओ ये कोई रीज़न है? ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, लेकिन मानना पड़ा। पता नहीं क्यों मानना पड़ा, अपने अपने लाइक लोगों की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। अवध की कहानी एकदम दूसरी थी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Awadh pretext used by Dalhousie to annex territory in India was misgovernment. Misgovernment कौन कर रहा था? According to Dalhousie, नवाब ऑफ अवध। अब नवाब ऑफ अवध कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध was accused of misrule and reluctance to introduce reform. उन्हें कोई तरक्की नहीं हो रही है, कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मतलब कि आपका मिस गवर्नमेंट है, आप मिस मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अवध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो चलाएगी, ठीक है। एंड अवध इट वॉज एनेक्स्ड, अवध इट वॉज कैप्चर्ड इन 1856। नाउ व्हाट हैपेंड? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया
क्योंकि देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर तो आपने ले लिया ये सारे, लेकिन अवध की कहानी क्या है? अवध की कहानी तो एकदम से एक रीज़न ही अलग है कि भाई आपसे लोग खुश नहीं है वहाँ के, आपका गवर्न करने का तरीका ठीक नहीं है, तो उन्होंने अवध ले लिया. दिस क्रिएटेड lot of unrest among the Indian soldiers in the British Army. I'm repeating it. This act of the East India Company, this act is what? Annexing the Awadh. कोई खास रीज़न नहीं था. This created a lot of unrest among the Indian soldiers in the British Army, as most of them they came from the Awadh and the surrounding countryside. ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही बहुत सारे इंडियन लोग भी थे, अपॉइंटेड थे. देखो, समझने की कोशिश करना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी, उसके अंदर सारे अंग्रेज नहीं थे, उनके बड़े बड़े कमांडर्स ही अंग्रेज होते थे, और जो उसके सोल्जर्स होते थे वो हिंदुस्तान के ही होते थे. तो जो हिंदुस्तान के जो लोग उसमें अपॉइंटेड थे, वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अवध के इलाके के थे या उनके आसपास के इलाके के लोग थे. उन्हें बड़ा बुरा लगा कि भाई ये कौन सा रीज़न है कि अवध के नवाब जो है उनको रूल करना नहीं आता है, कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए अवध भी छीन लिया. तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही जो इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे, उनके अंदर एक तनाव पैदा हुआ. ठीक है, उन्हें ये चीज़ नहीं अच्छी लगी. दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स. द ब्रिटिश आर्मी, एज मोस्ट ऑफ देम दे केम फ्रॉम अवध and the surrounding countryside, they revolted against British. Here it started. Fine. How interesting it is. अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे कि भाई बच्चा बोले, ऐसा नहीं कि नहीं बोले. झांसी की रानी बोली, ठीक है, रानी चन्नमन्ना भी बोली. कहाँ पे? किटूर में, कर्नाटक में बोली. लोगों ने रिवोल्ट भी करा, यानी कि शांति से नहीं बैठे हुए थे. लेकिन ये ट्विस्ट पॉइंट था कि ब्रिटिश आर्मी, अब हम उसको ब्रिटिश आर्मी बोलेंगे, भले ही उसके अंदर इंडियंस थे, लेकिन दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. फाइन. तो ये बड़ा मज़ेदार ट्विस्ट था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद जो है एक कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है. उसके बाद हम देखो 56 है, ये 1856 में ही कहानी हुई है अवध की. फाइन. और अंग्रेज़ों की आर्मी में एक ज़बरदस्त रिवोल्ट हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ. अंग्रेज़ों के खिलाफ ये रिवोल्ट जो हुआ, तो उसके बाद अब कहानी धीरे धीरे टर्न लेगी. ठीक है, झांसी की रानी जो थी, ठीक है, उनकी भी कहानी आएगी सामने. फाइन. और बहुत सारे और भी लोग आएंगे, जहाँ पर हम 1857 के रिवोल्ट को भी पढ़ेंगे बाद में, और आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे. लेकिन इस तरह के जो चेंजेस आ रहे थे, तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, उनके सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस किस तरह की थी, जुडिशरी किस तरह की थी, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फाइन. Thank you for listening. Thank you so much. Keep on reading the book properly. Thank you.